हरियाणा में बर्ड फ्लू का प्रकोप देखा जा रहा है। पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बर्ड फ्लू के खतरे के बावजूद भी प्रशासन बेखबर है। पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया था कि जिन पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू मिला है उनमें मुर्गों को मारकर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन की ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। जबकि विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने इन फार्म्स के करीब 1,66,000 मुर्गे खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। इस वक्त ਅਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਰਵਾਲਾ ਰਾਏਪੁਰਾਣੀ ਏਰੀਆ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4,37,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਖ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ नहीं पहुंचा। कैमरामैन प्रमोद ਦੇ ਨਾਲ वज़्म वर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। और इस पर सीधे पंचकुला से वज़्म जुड़ गए मेरे साथ हमारे संवाददाता। वज़्म, ऐसा क्यों कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतना ढीला रवैया आखिर प्रशासन का क्यों? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई, ग्राउंड रियलिटी हमने दिखाई, लेकिन इसमें 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। जिस तरीके से जो प्रदेश के मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि आज से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, 9 बजे से शुरू होगी। 9 बजे जब वहां पर पहुंचे, जो सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म है जो जिसकी मुर्गियां जो है वो पॉजिटिव पाई गई थी, ठीक है, उसमें ये कहा गया कि वहां पर 9 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। जब हम 9 बजे वहां गए, हम 9:30 बजे तक वहां पर रहे, वहां पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं मौजूद मिला। दूसरी ओर गांव खंगेसरा जो कि वहां से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर किसी अनजान शख्स द्वारा 200 से 250 मुर्गियां फेंक दी गई। जो मरी हुई मुर्गियां थी उसको सड़क पर फेंक दिया गया। वहां पर 2 दिन से जो है वो गांव के लोग जो है वो उनको परेशानी आ रही थी, उनको खुद क्रेन मंगवाकर जो है वहां से मुर्गियां जो है वो दफन करवानी पड़ी। काफी ज्यादा उनको परेशानी आ रही थी, लेकिन बड़े सवाल ये भी खड़ा हुआ वहां पर कि प्रशासन के अधिकारी 2 दिन तक वहां पर नहीं पहुंचे। जब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम वहां पर पहुंची, जब उन्होंने दिखाया, उसके आधे घंटे के भीतर किस तरीके से वहां पर जो है पशुपालन विभाग के लोग पहुंचने शुरू हो गए, हमने ये चीज भी दिखाई। लेकिन साथ ही जब हमने उनसे ये भी पूछा कि जब आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो है वो रेड अलर्ट पहले ही जारी किया गया है, यानी ना सिर्फ जो नारायणगढ़ है लेकिन साथ ही रायपुरानी, बरवाला, ये सारा इलाका जो है वहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, तो वहां पर टीमें क्या कर रही थी और वहां पर क्या अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर देखा कि 2 दिन तक वहां पर कोई भी टीम नहीं पहुंची, तो बाकी टीमें थी कहां पर, ये बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन साथ ही जब हमने डॉक्टर से बात की तो वो कहते कि हमें अभी जानकारी मिली है, यानी 2 दिन से कोई जानकारी नहीं मिली। जिस तरीके से बड़े दावे जो है मंत्री ने किए थे वो वहां पर जो है वो पूरे नहीं नजर आए। एक भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पोल्ट्री फार्म में नहीं नजर आया। जिस तरीके से ये कहा गया कि मुर्गियों को और अंडों को आज नष्ट किया जाएगा, वो उस तरीके की कार्रवाई कोई नहीं नजर आई। यानी जो दावे सरकार द्वारा किए गए धरातल पर वो 0 या 0 जो कहें उस तरीके से जो है वो पूरे नहीं उतर रहे। जी
बिल्कुल, ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंतजार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि और ज्यादा कहर इसका बरपे। बर्ड फ्लू जिस तरह के साथ तेजी के साथ पैर पसार रहा है, बढ़ रहा है, ऑलरेडी वहां पर कितनी पक्षियों की जान जा चुकी है, इसके बाद भी ये बड़ी लापरवाही, कौन लेगा जिम्मेदारी अगर केसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रशासन या फिर सरकार? बस ये भी बड़ा सवाल। देखिए अमृता देखिए, क्योंकि हमने आपको बता दें कि हमने 3 दिन पहले भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हम पोल्ट्री फार्म के अंदर गए थे। वहां पर हमने दिखाया था कि किस तरीके की तैयारी पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए, किस तरीके से अंदर जो है हम गए और बताया गया उनके जो पोल्ट्री फार्म ओनर हैं कि रानीखेत बीमारी है या ये जो वायरस जो है वो आया है, तो उसके चलते क्या बचाव किया गया है। अगर उस समय सैंपलिंग कर ली गई होती, 80 जो मुर्गियों के सैंपल जो लिए गए थे, अगर उसी समय से ये तैयारी जो है वो प्रशासन द्वारा कर ली होती तो आज ये नौबत ना आती। आज अगर डीसी से बात करें पंचकुला के, तो वो कहते हैं कि पशुपालन विभाग देखेगा। अगर पशुपालन विभाग से बात करें तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रशासन का काम है। हालांकि काम किसका है या किसका नहीं है, लेकिन वहां पर खतरा जो है, ना सिर्फ वहां पर जो पक्षी हैं, वहां पर जो बर्ड्स हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको भी खतरा है। शायद इसीलिए ये गाइडलाइन भी दी गई थी कि अगर वहां पर पोल्ट्री फार्म है और वो 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी गांव में आता है तो उसे जो है वहां पर उनके अंडे और मुर्गियां जो है वो नष्ट की जाएंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को जो है वो नहीं मिला है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है वज़्म कि सीरियसली इसे नहीं ले रही है सरकार। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिम्मेदारियां तय नहीं है, ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी, कौन जवाब देगा इस पर? इस बाबत क्या किसी से बातचीत आपने करने की कोशिश की? जब सुबह 9 बजे का वक्त था तो इंतजार क्यों, इतना डिले आखिर क्यों चल रहा है, अभी तक क्यों इस प्रोसेस की शुरुआत नहीं हुई? किसी से कोई बातचीत की आपने इस पर? देखिए सीरियसनेस की ही बात बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से हम वहां पर थे, हमने ये भी दिखाया कि 200 से 300 मुर्गियां वहां पर मरी पड़ी हैं। 2 दिन से कोई नहीं पहुंचा। खबर दिखाने का असर ये हो कि वहां पर पहुंचे और तहकीकात करनी शुरू कर दी गई। हमने उस समय भी प्रशासन के अधिकारियों से पूछा था, उन्होंने कहा कि हमें जब जानकारी मिलेगी हम तभी पहुंचेंगे। तो जानकारी यानी 2 दिन से उनके पास नहीं थी, जबकि वो रेड अलर्ट उस एरिया को घोषित किया हुआ है, तो वो कहां थे? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी ना सिर्फ ये पोल्ट्री फार्म ओनर्स की है कि उनको किस तरीके से बचाव करना होगा, लेकिन साथ ही प्रशासन की है। जो बड़े दावे सरकार कर रही है उस पर खरे क्यों नहीं उतर रही? जी बिल्कुल, वादे और दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कैसे निपटा जाएगा इस स्थिति से? अभी कोरोना की जो परेशानी है वो पूरी तरह से नहीं सिमटी है, अभी वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में, कोरोना का डर एक तरफ अलग बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है और ढीला रवैया जो सरकार और प्रशासन का नजर आ रहा है। ऐसे में अगर जो स्थिति है वो और खराब हो जाती है तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी? वज़्म किसके पास जाएगा मदद के लिए? कौन करेगा मदद, कौन चीजें बेहतर करेगा? शायद आम जनता अपनी ही मदद कर रही है, क्योंकि कई बड़े दावे किए गए प्रशासन की तरफ से कि 55 टीमें जो है वो बना दी गई हैं, जो कि तहकीकात कर रही हैं, लोगों को भी देख रही हैं कि किसी को कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, यहाँ तक कि आसपास के इलाके को भी छाना जा रहा है कि कोई पक्षी इस तरीके से और तो नहीं मरे मिल रहे। लेकिन 2 दिन से जो मुर्गियां वहां पर मरी मिली उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिली। जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 दिन से यहाँ पर थी, हमने अपना बचाव करने के लिए क्रेन बुलाई और अब इसको गड्ढा खोद कर जो मुर्गियों को वो दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर बताया जो गांव वाले थे कि ये उनके द्वारा ही करवाया जा रहा है, प्रशासन का इसमें कोई हाथ नहीं है। प्रशासन उसी समय आया है जब खबर दिखाई गई। तो आप सीरियसनेस भी देख सकते हैं, लेकिन जो बड़े दावे सरकार कर रही है और जो धरातल पर काम को हो रहा है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जी ठीक, चलिए, आपका शुक्रिया वज़्म इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।